Hello everyone, welcome back, and I hope everybody is doing good. So, on Sunday, we took a lecture on our introduction to this course where I have told you everything about this course, like which books we are going to follow and what is the way we are going to carry with this course, and obviously, what is the syllabus inside the sequence and series course, which has been given on the official syllabus of IIT JAM. Okay, so we have discussed all those things, and even if you have any question now, also you can just write it in the comment section or you can just ask me in Telegram personally. Okay, so today we are starting with this course, and we will proceed very slowly with this course so that those who are very new, those who have zero idea about sequence and series, they are also like able to catch this course and understand everything properly. Okay, so let's start with the sequence today, because after finishing with sequence we will start with series. Understanding series before we should start with the sequence, so that you have a idea okay how series comes. So sequence is the first topic that we should learn before starting with the series. Okay, so because series is not a different topic, it is the continuation of sequence. When we operate some operators in between the elements of the sequence, then that becomes a series. So obviously this is the continuation, not an individual topic, so we should learn sequence first. So today we are starting with our topic sequence. Okay, so we will see first what is the sequence, then we'll slowly proceed towards what is the bounded sequence, then convergent and everything. Okay, so we'll proceed one by one to all the topics. So the first target for today's class is to understand what is a sequence. Okay, so those who have idea what is a sequence, they can write in the comment section, okay, what the sequence is all about. And those who do not have any idea, don't worry, I'm going to discuss it today, that what is a sequence. So you might have got an idea about functions, right? कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है ना? तो आपने देखा होगा फंक्शन जो है इट इज अ मैपिंग, जहाँ पे एक हमारे पास डोमेन होता है ना, और देन हमारे पास एक को डोमेन होता है, और अगर वो इस ए के सभी एलिमेंट्स को किसी एक यूनिक एलिमेंट बी पे मैप करता है, तो ये मैपिंग एफ जो है वो एक फंक्शन बन जाती है। ठीक है, सो सर आपको जो आपका रियल एनालिसिस का या फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल का कोर्स है, वहां पे फंक्शन को और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव अंडरस्टूड फंक्शन क्या होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन ए is mapped uniquely to an element of B, then that would be considered as a function. So sequence जो है, to your uttermost surprise, sequence is also a function. Okay, this is also a function. तो अभी तक लोगों को सीक्वेंस में, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ओके ये सीक्वेंस है, दोज हु हैव आइडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, कि हाँ बस ये एलिमेंट्स हैं एंड दैट्स इट, बट दिस इज नॉट द केस। ओके, सीक्वेंस जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो हमारे पास डोमेन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वो सबसेट ऑफ रियल नंबर पे जाता है, या जिसको हम सीधे सीधे सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। ओके, एंड दैट इज वाई आपने देखा होगा फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल क्यों बोलते हैं, या रियल फंक्शन कब बोलते हैं, जब उसका जो रेंज होता है, या इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ उसका जो को डोमेन होता है वो अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर है, देन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ रियल फंक्शन। सो उसी तरह हम इसको रियल सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, या सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो इसका सबसेट होगा दैट वुड ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग सीक्वेंस एज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, एंड इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। Okay, so sequence is nothing but it is a function from the set of natural numbers to the set of real number. अब आप बोलोगे कि ओके इट्स फाइन, बट इसको और कैसे हम विजुअलाइज करें? तो देखो, सिंपल सी बात है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास क्या होता है, वहां पे आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वन से लेकर, एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ऑल ऑफ यू नो, 1 2 3 4 5 एंड लाइक दिस वी हैव एलिमेंट्स। सो फंक्शन क्या करेगा, इस A1 एलिमेंट को सपोज करो किसी एक A1 एलिमेंट पे जो कि रियल नंबर से उस पे मैप कर रहा है, A2 को, सॉरी 2 को वो A2 पे मैप कर रहा है, 3 को इट इज मैपिंग टू A3, देन A4। अब ये
A1 A2 A3 A4 कुछ भी हो सकते हैं, ओके, दीज आर रियल नंबर्स। ये इक्वल भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी, वॉट एवर देयर चॉइस विल बी, दे वुड बी दैट रियल नंबर्स। ओके, सो आई एम सिंपली सेइंग कि ये जो फंक्शन f है हमारे पास, ये क्या कर रहा है, ये 1 को A1 पे भेज रहा है, ठीक है, 2 को A2 पे भेज रहा है, बिकॉज मैपिंग f जो हमने बोला है वो एक मैपिंग ना हो, मैपिंग के साथ साथ एक फंक्शन भी है, तो मतलब n के सेट के हर एक नंबर को एक यूनिक इमेज मिलेगा। उसी तरह 3 A3 पे जा रहा है, लाइक दिस। ओके, सो दैट इज व्हाई f is doing what, it is mapping 1 to A1, 2 to A2 and 3 to A3. so this is a function, ओके, जहां पे जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए हमने सीक्वेंस को क्या बोला है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड द को डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो हमारे पास f ऑफ 1 है, जिसको हमने a1 बोला है, f ऑफ 2 है, वी आर कॉलिंग इट एट a2, f ऑफ 3 है, वी आर कॉलिंग इट एज a3। सो दीज आर कॉल्ड द सीक्वेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम सीक्वेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, अभी हमको सीक्वेंस समझ आ गया है कि सीक्वेंस क्या है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस, बिकॉज दैट इज वेयर द कंफ्यूजन इज कि सीक्वेंस को ऐसे तो नहीं लिखते, वो फंक्शन की तरह तो नहीं दिखता है, सो उसका थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, बट है ये एक फंक्शन है। सो हम रेंज वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे जैसे हम फंक्शन में पढ़ते थे। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस, तो अगर आप देखोगे तो सीक्वेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ये दिस इज अ सीक्वेंस। तो होगा क्या, अगर जैसे मेरे पास f एक फंक्शन है, ठीक है, फ्रॉम n टू रियल नंबर, और जहां पे मैंने लिखा है f ऑफ n इज इक्वल्स टू, सपोज वो n पे जा रहा है, तो इसका मतलब फिर ये मेरे पास सीक्वेंस क्या बनेगी, n बन जाएगी, है ना। और फिर मैं यहाँ पे देखो, अब आप नंबर्स डालना चालू करो n को, तो जब आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 3 4 5 लाइक दिस, है ना। अगर आप f1 को क्या देते हो, n स्क्वायर देते हो, तो यहीं से हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैरी करेंगे, इसको हम n स्क्वायर लिख देंगे। सो दिस वुड बी 1, देन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ओके, लाइक दिस इट विल प्रोसीड। So this is how we represent a sequence. I hope there is no problem till this point to anyone. Okay, this is the representation of a sequence. This is the way how we write a sequence. और ये जो हमने यहाँ पे elements अब लिखे हैं, these are called as the sequential elements. Okay, these are called as sequential elements. So that is why I'm telling you that sequence is nothing but it is a function which where the domain is the set of natural number and the codomain is the subset of real number or the complete real number. ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। और कभी कभी हम सिंपली ये करली ब्रेसेस ना लगा के हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एफ एन लिख दिया तो n बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा जो नोटेशन है वो यूज करना चाहते हो, ये वाला नोटेशन यूज करना चाहते हो या फिर ये वाला यूज करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आगे आप देखोगे कि हम अब फंक्शन, हम मैंने आपको बताया, तो यूजुअली वी हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग एफ, है ना, एज अ फंक्शन, बट कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख देंगे ए एन, ठीक है, या फिर बी एन लिख दिया हमने, ऑल राइट। समटाइम्स वी आर गोना राइट इट एक्स एन वाई एन, सो दैट इज जस्ट अ नोटेशन। वेरिएबल्स आपको जैसे असाइन करने हैं आप वैसे कर सकते हो। आपने देखा है कि हमने एफ बी फंक्शन की तरह यूज कर लेते हैं, कभी हम जी कह देते हैं, ए टू बी ए, तो दैट इज जस्ट अ नोटेशन। इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट टू राइट, ए एन बी एन एक्स एन वाई एन, वॉट एवर यू वांट राइट यू कैन राइट इट। और एन को हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखते हैं जस्ट टू सी द इंडेक्सिंग। आई टॉक अबाउट इट, बट आई होप टिल दिस पॉइंट देर इज no problem to everyone. Okay, and if there is any problem you can just let me know in the comment section. All right, so let's proceed to few things which are quite important about the sequence. ठीक है, suppose करो एक an मैंने लिया वेरिएबल, let's say this is 1 by n. okay, so हमारे पास जो सीक्वेंस an का होगा वो 1 by n बनेगा। अब सिंस इट इज अ फंक्शन, सो हम इसकी मैपिंग देखेंगे, तो n को जब हम 1 देंगे 1 पे मैप होगा,
फिर 2 जो है वो 2 पे मैप 1/2 पे होगा, 3 1/3 पे होगा, एंड लाइक दिस द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी मैप्ड। ठीक है। अब एक स्पेशल चीज जो है इस सीक्वेंस के बारे में वो क्या है कि यहाँ पे इंडेक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, जो इंडेक्स होता है एलिमेंट्स का, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेरे पास A1 है, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड सो ऑन। सो इसका क्या मतलब है, जो A1 एलिमेंट है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। उसी तरीके से जो A2 है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट A2 इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। सिमिलरली A3 इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब ये एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्सिंग। ओके, दैट व्हाट वी कॉल एज इंडेक्सिंग, दैट ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। सो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 1, इंडेक्स ऑफ सेकंड एलिमेंट इज 2, इंडेक्स ऑफ थर्ड एलिमेंट इज 3 एंड सो ऑन। ये समझ आया? दैट इज वाई वी आर somehow using this notation an bn xn yn so on. ठीक है। सो बिकॉज इंडेक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सीक्वेंस। एंड अब तो हम ये समझ गए, ओके व्हाट इज द इंडेक्स, दैट इज द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, बट व्हाई दिस इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट? दिस इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू कैन नॉट ऑल्टर इट। ओके, यू कैन नॉट ऑल्टर इट और यू कैन नॉट चेंज इट, है ना। मतलब कहने का क्या है कि अगर आपने इस एन सीक्वेंस में ऐसा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सेट हमने पढ़ रखा है, सेट में हमको क्या पता है, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। आई मीन अगर मैंने एक सेट ए लिखा विच इज 1 2 3, और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सेट का नोटेशन ऐसा होता है और सीक्वेंस का नोटेशन भी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज वाई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सेट में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, ऑर्डर लाइक उनका पोजीशन मैटर नहीं करता। अगर मैं ऐसा लिख दी 3 2 1, है ना, या मैं ऐसा लिख दूं 1 3 2, कुछ भी लिखूं, तो ये सेट ए ही कंसीडर किया जाएगा। आप इस 1 को किसी भी पोजीशन पे शिफ्ट कर दो, सेकंड पोजीशन पे डाल दो, थर्ड पोजीशन पे डाल दो, फर्स्ट पे डाल दो, देन ऑल्सो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज सेट ए ओनली, बिकॉज इनसाइड अ सेट there is a property that the order of the elements inside the set does not matter. It can be placed anywhere inside the set. But in sequence, this is not possible. You cannot change the index or the position of an element. अगर ये पहला एलिमेंट है सीक्वेंस का तो ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा है तो ये दूसरा ही रहेगा। ठीक है। सो दिस इज योर ए एन सीक्वेंस। मान लो गलती से आपने क्या किया, आप ये वाला नोटेशन यूज कर रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा अच्छा ऐसा है, तो किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया 1/2 1 1/3 1/4, इट इज रॉन्ग। ये नोटेशन इसलिए मैं यूजुअली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू यूज दिस नोटेशन, बट अगर ये नोटेशन भी यूज कर रहे हो तो कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अ सेट। ओके, तो आपने 1/2 को फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, 1 को यहाँ, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट, ये बन गया सीक्वेंस का सेकेंड एलिमेंट। तो अब मैंने आपको क्या बताया है, बिकॉज सीक्वेंस इज अ फंक्शन, तो ए एन क्या कर रहा है, ए एन 1 को मैप कर रहा है 1/2 पे, और ए एन 2 को मैप कर रहा है 1 पे, है ना, क्योंकि A1 जो है वो 1 जो है वो A1 पे मैप हुआ था ना, तो 1 अभी किस पे मैप हो गया, 1/2 पे मैप हो गया। A2 जो है वो क्या है, वो A2 इज एक्चुअली द इमेज ऑफ द 2 विच इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब A2 जो है वो A2 जो है A2 पे मैप हुआ, और A2 आपका अभी 1 बन गया क्योंकि आपने सेकेंड पोजीशन पे लिखा। I hope this point is pretty much clear to all of you. This is the base, this is the foundation of the course sequence and series, and it is very, very important for you to understand about the indexing of the sequence, because sequence is not only a set. Okay, this is not a set, this is a function. So you need to understand कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स का इमेज लिख रहे हैं, तो आप मैपिंग को चेंज नहीं कर सकते हो। अदरवाइज ये अगर ऐसा लिख दिया तो ये ए एन सीक्वेंस ना होके एक नया सीक्वेंस बी एन बन जाएगा, जहां पे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 1 एलिमेंट है डोमेन का, वो 1/2 पे मैप हुआ है, 2 1 पे मैप हुआ है, वाइल इन A1 जो 1 है वो 1 पे मैप हुआ है, 2 1/2 पे मैप हुआ है। ओके,
So I'm just giving you 1 minute. Clear up your mind and see if there is any doubt and just let me know. ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या कवर किया? लेट मी जस्ट टेल यू. आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज अ सीक्वेंस. लेट मी जस्ट गिव यू अ समरी ऑफ व्हाट वी डिड टिल नाउ. कि सीक्वेंस हमारे पास ए एन जो है वो एक फंक्शन है. कहाँ से कहाँ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे. इसका नोटेशन हम ए एन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना. और कभी कभी आप देखोगे कुछ लोग ए एन ऐसे भी लिखते हैं, विच इज लाइक हमें बस इतना ही समझना है, नॉट वी हैव टू गो इन वेरी डिटेल, है ना. और इसको हम लिखेंगे कैसे? A1, A2, A3, A4. ठीक है, जहां पे आप क्या बोलोगे? जो हमारे पास A1, A2, A3, A4 क्या है? वो रेंज है, वो रेंज के एलिमेंट्स है. यानी कि जो हमारे पास वन एलिमेंट है नेचुरल नंबर वाले सेट का, डोमेन का, वो किस पे मैप हुआ है? वो मैप हुआ है हमारा किस पे? वन पे. ओके, सो वन हैज बीन मैप्ड टू A1 एंड देन ऐसा हम फंक्शंस में पढ़ते थे ना, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड देन दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर. और ये मेरे पास फंक्शन ए एन है. टू को वो A2 पे मैप कर रहा है, थ्री को वो A3 पे मैप कर रहा है, लाइक दिस. And then we have understood till now the importance of indexing, that we can't change the position of the sequence elements. Position of sequence elements. तो इसीलिए हम इनको sequential elements कहते हैं. There is a sequential position which we cannot alter anyhow. ओके, अदरवाइज वो एक नई सीक्वेंस बन जाएगी. और उसको हम समझ कैसे रहे? क्योंकि ये इमेजेस लिखी हुई हैं. तो वन एलिमेंट A1 पे मैप हुआ है, टू एलिमेंट A2 पे, थ्री एलिमेंट A3 पे. अगर आप यहाँ A2 लिख दोगे तो फिर एक नया सीक्वेंस होगा जहां पे वन A2 पे मैप हुआ है, टू A1 पे. ओके, सो अब तक हमने सीक्वेंस के बारे में इतना पढ़ लिया. I hope there is no problem to anyone till this point. Okay, so just take half of the minute and see if there is any problem. Then you can clear it up. You can drop a comment or you can ask me in the Telegram. You can message me there. Okay, so if everything is clear till this point, then let's proceed further. एंड एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दी है कि जो ये मेरा ए एन होगा, ठीक है, ये जो सीक्वेंशियल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए एम लिख देती हूँ, ये सब रियल नंबर से बिलोंग करेंगे फॉर ऑल एम फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन. ठीक है, दे ऑल आर रियल नंबर्स. तो ये इक्वल भी हो सकते हैं आपस में, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, या कुछ एलिमेंट्स इक्वल कुछ डिस्टिंक्ट, वट एवर वुड बी द कॉम्बिनेशन दैट वी वुड सी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सीक्वेंस. यानी कि वो फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया है. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. अब जैसे कि हमने सीक्वेंस यानी कि रियल सीक्वेंस पढ़ लिया है, तो आप सबको पता होगा रेंज. हम फंक्शन का रेंज भी पढ़ते थे ना, अगर आपको याद हो, हम फंक्शन का रेंज पढ़ते थे. तो वहां पे क्या कहते थे? कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जिनका एटलीस्ट वन प्री इमेज एग्जिस्ट करे. ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन. रेंज ऑफ अ रियल सीक्वेंस. तो फंक्शन की हेल्प से समझाना इजी होगा, तो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दैट वे. हम क्या पढ़ते थे कि अगर मेरे पास फंक्शन है फ्रॉम A टू B, ठीक है, तो हम रेंज ऑफ फंक्शन को कैसे लिखते थे? रेंज ऑफ फंक्शन कैसे लिखते थे? कोडोमेन के एलिमेंट्स. तो क्या लिखेंगे? y बिलोंगिंग टू B. ठीक है, सच दैट क्या हो, उनके लिए एक ऐसा x एग्जिस्ट करे A में, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y हो रहा हो. ऐसा पढ़ा था. यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, सपोज मैंने लिखा 1 2 3 एंड हियर इट इज 4 5 6, ठीक है, और ये फंक्शन f है. तो इसकी मैपिंग ऐसी है, 1 4 पे जा रहा है, 2 भी 4 पे जा रहा है एंड 3 भी 4 पे जा रहा है. तो उस केस में मेरा जब मैं रेंज ऑफ f निकालूंगी तो क्या आ रहा होगा? कोडोमेन के कौन से एलिमेंट है जिनकी एटलीस्ट एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे? तो 4 है, एटलीस्ट एक है, इसकी तो 3 एग्जिस्ट कर रही, तो 4 आ जाएगा. बट 5 और 6 को एक भी प्री इमेज नहीं है. ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है एंड 3 भी 5 पे जा रहा है. तो रेंज ऑफ f निकालने जाओगे तो क्या आएगा? 4 की एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए, हाँ है 1. 5 की एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए, 2 है इसके बाद. ठीक है,
6 की कोई भी प्री इमेज नहीं, तो ये रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। और अगर मान लो हम 1 को 4 पे, 2 को 5 पे, 3 को 6 पे कर देते हैं, तो फिर रेंज में तीनों एलिमेंट आ जाएंगे 4 5 6, क्योंकि तीनों को एक एक प्री इमेज मिल रही है। कम से कम एक मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने फंक्शन की रेंज के बारे में पढ़ा था। तो रेंज जो होती है वो एक्चुअली क्या है, हमारे पास सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो अभी हमने क्या देखा, जो सीक्वेंस है मेरे पास वो भी क्या है, वो भी तो एक फंक्शन ही है ना। an जो है हमारे पास वो क्या है, a1 a2 a3 a4। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन। तो फंक्शन का जैसे हम रेंज निकालते थे, तो वैसे ही हमारे पास सीक्वेंस का रेंज हो जाएगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखो, इन सबको प्री इमेजेस तो मिल ही रही होंगी ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, an जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे है ना। यानी कि 1 जो है वो a1 पे गया होगा, a1 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 2 जो है वो a2 से गया होगा, वो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। 3 जो है वो a3 से गया होगा, वो रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। तो a1 a2 a3 a4 को प्री इमेजेस तो ऑब्वियसली मिल रहा है। a1 का प्री इमेज 1 है, a2 का प्री इमेज 2 है, a3 का प्री इमेज 3 है। सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और हमको पता है कि रेंज जो है वो क्या है, वो एक सेट है, और वहां पे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो अगर इन सब में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो मैं उठा के एक सेट में डाल दूं, तो वो रेंज बन जाएगा ना। ये एक फंक्शन है, बट एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ठीक है। सो a1 a2 a3 a4 एक्चुअली आप देखो तो ये फंक्शन का इमेज ही तो है। ये a1 क्या है, ये 1 का हमारे पास क्या है, मतलब 1 का इमेज है। a2 जो है वो क्या है, वो हमारे पास 2 का इमेज है। तो ये रेंज के ही एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली अगर आप रेंज ऑफ an लिखोगे तो वो यही होगा क्या, a1 a2 a3 a4। बट क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हो सकता है कुछ एलिमेंट्स आपस में बराबर हो, तो यू नो दैट एलिमेंट्स जो होते हैं किसी भी सेट में रिपीट नहीं होते। अब रेंज जो है वो एक सेट है। तो अब हमको क्या देखना है, इसमें से जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करें, एक सेट में डाल दें, तो वो बन जाएगा रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, आई होप अभी समझ आ गया हो, क्योंकि a1 a2 a3 a4 खुद क्या है, इमेजेस हैं, मतलब वो रेंज में तो आएंगी ही, क्योंकि उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही रही है, फॉर श्योर, नो डाउट। अब उनमें से जो डिस्टिंक्ट है उनको हम अगर छांट लें और फिर सेट में डाल दें, देन वी आर डन विद इट। Okay, so let me just write down the definition for all of you for the range of the function. तो हम क्या पढ़ते हैं रेंज के बारे में, कि रेंज ऑफ ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज द सेट। ओके, अब अभी सीक्वेंस को हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, बट रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, या फिर सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल एलिमेंट्स, जो कुछ भी आप कहना चाहो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कि जो an मैं सीक्वेंस कह रही हूँ वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे, या आप ये कह सकते हो सबसेट ऑफ ए रियल नंबर पे जाता है। तो जो n सेट है मेरे पास वो तो इनफाइनाइट सेट है, यानी इट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस के, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑल्सो फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट। क्योंकि आप देख रहे हो ना, a1 a2 a3 a4 a5, because n is an infinite set, so number of elements in a sequence are also what, also infinite। ठीक है, तो जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या हो सकती है, अबाउट द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, इट कैन बी फाइनाइट एंड इट कैन बी अ इनफाइनाइट सेट, है ना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपको एक सीक्वेंस दिया an -1 की पावर n। ठीक है,
तो देखो n की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 किस पे मैप होगा, -1 की पावर 1 -1 पे। 2 किस पे मैप होगा, -1 का स्क्वायर 1 पे। देन अगेन 3 -1 पे। तो आप देखो सीक्वेंस के एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट है। कैन यू सी दैट द सीक्वेंशियल एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। लेकिन अब मैंने क्या बोला, ये तो ऑब्वियसली इमेज ही है, तो रेंज में तो आएंगी ही। बट अगर मैं रेंज निकालने जाऊंगी ए एन का, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो एक सेट होगा जिसमें केवल -1। अब -1 1 -1 1 तो नहीं लिख सकते ना, बिकॉज इन अ सेट द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। तो ये हमारे पास कैसा बन गया, सीक्वेंस की जो रेंज है वो एक फाइनाइट सेट बन गई। आई होप आपको यहाँ से रेंज भी निकालना आ गया हो। So the range of the sequence AN is what is -1 and 1, that is the distinct elements from the sequential elements and this is a finite set। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक दूसरी सीक्वेंस लेती हूँ BN, ठीक है, और ये सीक्वेंस है मेरे पास क्या, सपोज करते हैं ये सीक्वेंस है मेरे पास n², ठीक है। तो अब मतलब ये 1 किस पे मैप हुआ, 1 स्क्वायर पे। 2 किस पे मैप हुआ, 4 पे। 3 किस पे, 9 पे। 4 किस पे, 16 पे, लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियसली हमने देखा कि सीक्वेंस जो है उसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स विच वी कैन सी फ्रॉम हियर, बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, तो हर एलिमेंट का मैपिंग होगा, तो सीक्वेंस भी इनफाइनाइटली एलिमेंट्स होंगे। अब लेकिन मैं रेंज अगर निकालने जाऊंगी इस BN सीक्वेंस का, विच इज व्हाट, नंबर ऑफ, विच इज व्हाट, ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द सीक्वेंस। तो अगर मैं यहाँ देखूंगी तो सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट ही तो है। आगे 25 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो अब इस केस में जो रेंज है मेरा वो इनफाइनाइट सेट हो गया। So the range of a sequence can be a finite set or an infinite set, but the sequence has always infinite elements, and the reason being is that because the domain of the sequence is set of natural number, which is a infinite set. I hope it is clear till this point to all of you. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी अबाउट सीक्वेंस क्या होती है। देन सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस इनफाइनाइट होते हैं। रेंज होती है विच इज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, जिसको हम बोलते हैं वो कोई भी फाइनाइट सेट हो सकता है या इनफाइनाइट सेट होता है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द एग्जाम्पल्स। ओके, तो इतना कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम कुछ एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस देखते हैं, एंड देन वील गो टुवर्ड्स द बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, एंड कल भी यही कंटिन्यू होगा। तो लेट्स गो टू अ इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। And again I'm repeating one thing, that if you have any problem you can drop a comment or you can ask on Telegram. Okay, please be free to clear all your doubts, because that is very important. Before exam or before finishing any topic you should be clear with all your doubts. So what is a constant sequence? As the name itself suggests, हमने constant function भी पढ़ा था। अगर आपने फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 12th में इन योर ग्रेजुएशन, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था कि फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो होता था वो सी पे जाता था फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, जहाँ पे जो सी एलिमेंट होता है वो बी से बिलोंग करता है। यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट को हम कहाँ भेजते हैं, सी पे भेजते हैं। तो अगर ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये एफ फंक्शन। तो यहाँ पे सपोज x1 x2 x3 x4 xn, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ये सब के सब किस पे मैप हो रहे हैं, दे ऑल आर बीइंग मैप्ड टू सी। और यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं बट उन किसी पे नहीं जा रहे, सिर्फ सी पे। तो वी कॉल दिस फंक्शन एफ एज अ कांस्टेंट फंक्शन। और इस फंक्शन की अगर हम रेंज निकालें तो क्या होती थी, the elements which have at least one pre-image in the domain is only C, क्योंकि बाकी बी के किसी एलिमेंट की एक भी प्री इमेज ही नहीं है, सी की है। तो जो रेंज एफ की होती थी वो क्या होती थी, एक सिंगलटन सेट होती थी, ठीक है, दिस इज अ सिंगलटन सेट। तो सेम चीज सीक्वेंस में भी है। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट सीक्वेंस होगी सी।
मतलब कि पहला एलिमेंट भी सी पे मैप हुआ, दूसरा भी सी पे, तीसरा भी सी पे, चौथा भी सी पे. सो दैट इज व्हाई वी कॉल this sequence as a constant sequence. So a sequence whose every element is C, then that sequence would be considered as a constant sequence. और अब देखो, अगर मैं range निकालूं इस sequence का, तो this would be a singleton set C. आई होप कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्लियर हो गई. सो सीक्वेंस जिसका हर एक एलिमेंट सेम होगा, first element, second element, third element, and all the elements, all the infinitely many elements inside that sequence are same or C, say for C, then the that sequence would be considered as a constant sequence and the range of that sequence would be a singleton set C. ठीक है, तो बिल्कुल फंक्शन से मैं रिलेट करा रही हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा. बट फंक्शन से कुछ चीजें अलग हैं सीक्वेंस में, तो वी विल सी देम. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नाउ बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस. अब यहाँ पे ये हमारे पास जो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर देखोगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, जहाँ पे ऑप्शन बना देंगे बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, देन बाउंडेड, बाउंडेड बिलो बट नॉट अनबाउंडेड अबव, काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस बनाते रहते हैं. So you have to understand bounded and unboundedness of a sequence very nicely. And even if you want to prove whether a sequence is convergent or not, sometimes you need to prove whether the sequence is bounded or not. So these all the topics, like अभी हम monotonic पढ़ेंगे आगे, तो convergent sequence दिखाने के लिए bounded, unbounded and monotonic are the base. So you should be very much like clear about these topics, because if you didn't understand that, how do we need got to know that whether the sequence is bounded, unbounded, or whether the sequence is monotonic, then you won't be able to prove whether the sequence is convergent or divergent. So that's going to create a problem for you in exam, because आप देखोगे sequence series का question like कुछ साल को छोड़ के, those are the exceptions, like कुछ एक दो साल छोड़ दो, बाकी साल में आप देखोगे सीक्वेंस का हर बार एक नया क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको कुछ नया अप्लाई करना होता है. तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड these topics clearly. You don't have any doubt, okay? Even if you have, you can ask me in the chat box, okay? So let's proceed toward bounded and unbounded sequence. और ये फिनिश करके हम बाउंडेड अनबाउंडेड पे थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि पहले हम थ्योरी सीखेंगे, एंड थ्योरी के बाद मैं आपको वो सारे पॉसिबल तरीके सिखाऊंगी जिससे हम किसी सीक्वेंस को प्रूफ कर सकते हैं वेदर दिस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड. ठीक है, सो बाउंडेड अनबाउंडेड में हम कम से कम अभी 2 क्लास तक रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट नाइसली. एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल पॉसिबल वेज थ्रू विच यू कैन प्रूव वेदर द सीक्वेंस इज बाउंडेड और अनबाउंडेड. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस में बाउंडेड अबव की. ठीक है, बिल्कुल जैसे हम सेट में पढ़ते थे ना बाउंडेड अबव सीक्वेंस, फंक्शंस में पढ़ते थे बाउंडेड फंक्शन, वैसे ही है. सो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस, एनीवन इफ यू हैव एनी आइडिया जस्ट लेट मी नो. नो आइडिया? ओके, so bounded above sequence, so a sequence, let me write down the definition for you. A sequence an is said to be बाउंडेड अबव. अब से मैं बाउंडेड अबव को ये BDD एंड ऐसा लिखूंगी. ठीक है, दैट वुड बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m, ओके, फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट, क्या हो आपके पास जो आपका an है वो लेस देन इक्वल्स टू m हो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. ठीक है, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि आपकी सीक्वेंस an जो है उसको हम बाउंडेड अबव कब बोलेंगे? जब एक ऐसा रियल नंबर m एग्जिस्ट करे जिसके लिए सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट या तो उस नंबर के बराबर हो या उससे छोटा हो. तो आप देख सकते हो दैट m इज द बिगेस्ट नंबर, बिकॉज सारे सीक्वेंस, और ये फॉर ऑल n बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर ऑल n का मतलब मैं क्या कह रही हूँ, देखो, a1 is also less than or equals to m, a2 is also less than or equals to m, a3 is also less than equals to m, and so on.
सो फॉर ऑल पॉसिबल एन, यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए जो उनका इमेज है ए एन, वो हमेशा एम से या तो छोटा हो या बराबर हो, देन यू आर गोइंग टू से दैट द सीक्वेंस ए एन इज अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ठीक है, अब एक और यहीं पे देखो तरीका हमने निकाला है बाउंडेड अबव देखने का, वो क्या है? अभी हमने क्या देखा था कि जो रेंज होती है मेरे पास किसकी, सीक्वेंस की, ठीक है, सीक्वेंस की जो रेंज होती है वो सेट होती है किसका, ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द सीक्वेंस। तो मतलब सीक्वेंस में जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो सब रेंज में होंगे, छोटे एलिमेंट्स, बड़े एलिमेंट्स, और इनफाइनाइटली अगर एलिमेंट्स हैं जिनका हमको लोअर अपर बाउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी रेंज वुड कंटेन ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द सीक्वेंस। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि जो रेंज है सीक्वेंस की वो कैसी होगी, रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, तो भी तो मेरा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव हो जाएगा। वी विल सी सम एग्जांपल्स, डोंट वरी, ओके, वी विल सी वन बाय वन। सो देन दैट सीक्वेंस वुड बी कंसीडर्ड एज बाउंडेड अबव। ठीक है, देखो बाउंडेड अनबाउंडेड मैं आपको थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगी स्लोली। अभी तक आई थिंक कांस्टेंट सीक्वेंस और जो मैंने आपको रेंज और सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन दिया है, मे बी आपको लगा हो मैं थोड़ा फास्ट वहां पर पढ़ा रही थी, बिकॉज दैट वाज द बेसिक टॉपिक। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती है देन ऑल्सो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, पर्सनली और ऑन कमेंट सेक्शन, दैट मैम प्लीज go a little slower, so I'll manage that speed। बट अभी मैं बता रही हूँ अगर इसके पहले की स्पीड आपको थोड़ी ज्यादा लगी है तो इट वॉज जस्ट बिकॉज दैट वॉज द बेसिक पार्ट, एंड उसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं था या ऐसा नहीं था जो आपको ना समझ में आए। बट बाउंडेड अनबाउंडेड आई try to teach you a little slower because this is very important, okay? But still if you feel like I'm going I'm going with very high speed, you can just let me know, ठीक है? सो बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस में हमने क्या देखा कि एक सीक्वेंस ए एन जो है उसको हम बाउंडेड अबव कब बोलेंगे, जब एक एलिमेंट एम ऐसा एग्जिस्ट कर जाए या एक एम ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, या तो वो उसके बराबर हो या फिर उससे छोटा हो, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ए एन एज अ सीक्वेंस, जहां पे मैं इसको लिखती हूँ, सपोज माइनस एन लिख दिया, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, अब क्या करना है हमको, देखना है कि इसमें से जो हमारे पास कैसा कोई एक ऐसा रियल नंबर एम एग्जिस्ट करता है जिससे हम सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को छोटा बता सके, है ना, या फिर हम बड़ा बता सके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -1 जो है वो -1 के बराबर है, -2 जो है वो कैसा है, -1 से छोटा है, -3 जो है वो -1 से छोटा है। ओके, सो यू कैन सी दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर, सीक्वेंस का आगे का हर एक एलिमेंट देखोगे तो वो -1 से या तो बराबर है या उससे छोटा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ दैट ए एन is less than or equals to -1 for all n belonging to natural number। और केवल -1 एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा है, -1 के बराबर है, बाकी सारे एलिमेंट छोटे। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि m इज इक्वल टू -1 जो है ये मेरा अपर बाउंड होगा, ओके? और यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो m होता है, m को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो वापस से हम इस पे आते हैं, तो m इज इक्वल टू -1 इज गोइंग टू बी अपर बाउंड। अब देखो एक चीज और, कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है कि ए एन जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 भी तो है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। यस, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए एन जो है वो 1 से भी तो छोटा है। यस ऑफ कोर्स है। तो इस केस में आपका कैपिटल एम क्या बनेगा, 0। इस केस में आपका कैपिटल एम क्या बनेगा, 1। तो मैंने डेफिनेशन में भी तो यही लिख रखा है, इफ देयर एग्जिस्ट, यानी एक अगर एग्जिस्ट कर जाए तो अपना काम बन जाएगा, एक से ज्यादा एग्जिस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आई हैव रिटन इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m, सो एक एग्जिस्ट करना चाहिए एटलीस्ट। तो हमारे पास एक से ज्यादा एग्जिस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम अभी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है?
कि अब इन अपर इतने सारे अपर बाउंड्स हैं तो इनका क्या करना है, तो वील प्रोसीड फर्दर, बट फॉर नाउ you can say that yes this an is a bounded above sequence. ठीक है, रेंज से भी समझ सकते हो, रेंज अगर इस an का निकालोगे तो क्या आएगा भाई, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिख दो। अब सेट के हिसाब से भी आप देखोगे, सेट का आपने पढ़ा ही है, बाउंडेड अनबाउंडेड सर ने आपको पढ़ाया ही है, नहीं पढ़ाया तो अभी पढ़ा देंगे। तो इस सेट का हर एक एलिमेंट जो है आप देख सकते हो, -1 0 1 सबसे क्या है, या तो छोटा है या उससे बराबर है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो बाउंडेड अबव। नाउ लेट्स प्रोसीड टू बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, कि हमारे पास बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है। अब जैसा कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, वहां पे बाउंडेड अबव था तो हम अपर बाउंड की तलाश कर रहे थे, यहाँ पे बाउंडेड बिलो है तो हम बाउंडेड बिलो की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले हम ये थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, मे बी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी विच वुड बी ऑन थर्सडे, वहां पे हम बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अनबाउंडेड सीक्वेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। सो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है? So let me write it down again for you, that a sequence an is said to be bounded below if there exists this small m, a real number, such that क्या हो, जो आपका xn हो वो क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, x sorry, let me, I have taken an, so here also it was an, yeah, no problem. So if your an is greater than or equals to this small m for all n belonging to what, belonging to natural number। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर इसका मतलब निकालोगे तो क्या है, a1 बड़ा हो या बराबर हो, सिमिलरली a2 इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m, a3, तो आप क्या कह सकते हो कि जो m है उससे हर एक एलिमेंट बड़ा है या उसके बराबर है। सो इस m को क्या बोलोगे आप, लोअर बाउंड बोल सकते हो, है ना, बिकॉज लोअर बाउंड क्यों, बिकॉज ये सबसे छोटा है, हर एक एलिमेंट या तो इससे बड़ा है या बराबर, एंड दिस शुड हैपन फॉर एवरी n, दैट इज फॉर एवरी an इट शुड हैपन, then only you are going to say that an is bounded below। या फिर जैसे हमने रेंज वाला पढ़ा कि जो रेंज है हमारे सीक्वेंस की वो कैसी हो, वो बाउंडेड बिलो हो। ठीक है, then this would be called as bounded below sequence। let's take an example, an को हमने यहाँ n ले लिया, so what it would be 1 2 3 4 5। अब सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट आप देख पा रहे होगे अगर, तो वो 1 से कैसा है, 1 से या तो बड़ा है या उसके बराबर है ना। आप देखो यहाँ पे 1 is equal to 1, 2 is greater than 1, 3 is greater than 1, 4 is greater than 1, so every sequential element is what, is either greater than 1 or equals to 1। so यहाँ पे small m की वैल्यू हमने 1 ले ली, this is the lower bound, and as I said there should exist a small m, but if there are existing more than a small m, more than one small m, we don't have any problem, because आप देखोगे जीरो से भी तो हर एक एलिमेंट बड़ा है ना, है कि नहीं है। आप देखो यहाँ पे हमारे पास अगर आप -1 ले लेते हो उससे भी तो बड़ा है हर एक एलिमेंट, तो यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, और जो भी जितने भी छोटे नंबर्स है -1 और 0 से, है ना। अगर रेंज की बात करोगे an का, तो an का रेंज अगर देखोगे तो क्या आएगा, जो सेट बनेगा वो ये, और ये सेट आप देख सकते हो एज अ सेट को, जब आपने बाउंडेड पढ़ा होगा तो सेट इज बाउंडेड बिलो बाय 1, तो रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, दैट इज वेयर द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। सो सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाने के दो तरीके, या तो आप खुद ही सीक्वेंस के एलिमेंट्स को देख लो, ठीक है, या फिर आप उसके रेंज को देख लो, बट इन बोथ द वेज यू आर एक्चुअली डीलिंग विद द सीक्वेंशियल एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस इज व्हाट, दिस इज बाउंडेड बिलो बाय 1 0 -1 whatever you want to say। I hope it is clear till this point, because today we have to finish with our theory so that tomorrow we, or the day after tomorrow, we can start with our question part। ठीक है, then next आता है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, that what is a
बाउंडेड सीक्वेंस। सो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा? सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस जो कि बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, देन दैट वुड बी सेड एज बाउंडेड सीक्वेंस. So let me write it for you. A sequence is said to be a sequence is said to be bounded if it is bounded above as well as what? As well as it is bounded below. है ना? अभी तक हमने क्या देखा? एक सीक्वेंस बाउंडेड अबव हो तो क्या मतलब है, बाउंडेड बिलो हो तो क्या मतलब है. नाउ वी हैव सीन कि एक सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हो तो ही बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इफ देयर एग्जिस्ट, या फिर हम इसका दूसरा मतलब क्या निकाल सकते हैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन, दैट सीक्वेंस an is bounded if what, there exist two real numbers, है ना, सच दैट क्या हुआ आपके पास. और यहाँ पे याद रखो कि एक कंडीशन होगी और वो कंडीशन क्या होगी कि जो आपका स्मॉल m है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल M. ठीक है, सच दैट क्या हो आपके पास जो an सीक्वेंस है वो m से बड़ी हो या बराबर हो, और ऐसा फॉर ऑल एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. अब देखो खुद ही समझ सकते हो आप यहाँ से क्या, ये वाला जो पार्ट है वो हमने किस में सीखा है, वी हैव अंडरस्टूड इन बाउंडेड अबव. यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है, क्योंकि सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट बाउंड है एक कैपिटल M रियल नंबर से, यानी कि उससे या तो छोटा है या उसके बराबर है. ठीक है, एंड देन देखो नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाला पार्ट जो हमने सीखा वो किस में सीखा, बाउंडेड बिलो में सीखा, है ना, कि यानी हर एक नंबर जो है सीक्वेंस का वो या तो बड़ा है या बराबर है, यानी बाउंडेड बिलो है. सो अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाती हैं तो जो सीक्वेंस है मेरे पास वो क्या कहलाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगी. एंड अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबाउंडेड. यहाँ देखो अ सीक्वेंस, अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज अनबाउंडेड सीक्वेंस. सो अ सीक्वेंस इज सेड टू बी unbounded if it is not bounded. तो कहने का क्या मतलब है कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो उसको हम अनबाउंडेड सीक्वेंस बोल सकते हैं. अब यहाँ पे बहुत बड़ा डाउट होगा कि अगर मैम हम उसको बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड बोल रहे हैं, मतलब कि वो दोनों ही नहीं होने चाहिए, ना तो बाउंडेड बिलो होनी चाहिए ना बाउंडेड अबव. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस बनने के उसके पास तीन पॉसिबिलिटी है. क्या, कि वो अनबाउंडेड बिलो हो जाए, मतलब बाउंडेड बिलो नहीं है, और वो अनबाउंडेड अबव हो जाए. ठीक है, दोनों ही केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस. या फिर वो बाउंडेड अबव तो हो, ठीक है, लेकिन क्या हो जाए, अनबाउंडेड बिलो हो जाए, यानी उसका लोअर बाउंड ना मिले. या फिर क्या हो, अनबाउंडेड अबव हो जाए एंड बाउंडेड अबव हो जाए, सॉरी बाउंडेड बिलो हो जाए. सो दिस इज ऑल्सो, इन तीन पॉसिबिलिटी होने से आप बोल दोगे कि वो सीक्वेंस अनबाउंडेड है. क्योंकि देखो बाउंडेड सीक्वेंस तो तब होगी ना जब बाउंडेड अबव भी हो और बिलो भी. अगर कोई एक भी नहीं हो रहा है तो वो बाउंडेड नहीं हुई, और बाउंडेड नहीं हुई इसका मतलब ही क्या हुआ, वो अनबाउंडेड हो गई. बाउंडेड अबव है बट अनबाउंडेड बिलो, मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, तो इन शॉर्ट इट इज अनबाउंडेड. सेम फॉर दिस वन. ठीक है, सो तीनों पॉसिबिलिटी में उस सीक्वेंस को हम अनबाउंडेड सीक्वेंस ही बोलेंगे. बट अब हमने उसमें भी क्या किया है, हमने उसमें भी कैटेगरी बना दी है. कैसे, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस बना दी हमने. ठीक है, क्योंकि अनबाउंडेड का भी हमने केसेस बना दिया. अब अनबाउंडेड सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होगी, यस, अनबाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास वो सीक्वेंस होगी जो बाउंडेड अबव ना हो. अ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव. ठीक है, तो जैसे हमने केस पढ़ा
ठीक है, वो बाउंडेड अबव नहीं है। उसी तरह हमने एक और केस बनाया अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस का, ठीक है, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस का। और वो क्या बनाया हमने कि अ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो, अ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड बिलो। एंड आई थिंक अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि अ सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव, तो हमने अभी यहाँ पे जो चीजें पढ़ी, ठीक है, सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव, तो हमने ये बाउंडेड अबव पढ़ा। और नॉट बाउंडेड अबव मतलब वहां पे कोई ऐसा एम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो, है ना, यानी कि देर वोंट एग्जिस्ट एनी एम रियल नंबर फॉर विच ए एन इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। ठीक, जैसे बाउंडेड बिलो में हमने पढ़ा, सो इसका मतलब अनबाउंडेड बिलो क्या होगी, फॉर विच देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉल एम रियल नंबर फॉर विच ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम, है ना। तो अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू दिस, और उसके बाद हम एक थ्योरम जो है वो प्रूफ करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम अपनी वो थ्योरम स्टार्ट करके और फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सो सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए, ए एन इज इक्वल्स टू -1 की पावर एन, ठीक है। सो अगर आप इसको देखोगे, इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -1 1 -1 1 देन -1 1, ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से, आप अगर ऐसे भी देखोगे केवल -1 और 1 ही आ रहा है, तो सीक्वेंस का जो हर एक एलिमेंट है वो या तो क्या है, 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, राइट, ऐसा ही हो रहा है। और सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, वो 1 से या तो छोटा है या फिर वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो आप दोनों ही केसेस में देखो तो ऐसा हो रहा है ना। इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा लिखूं आपके लिए कि जो सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट है वो -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये सीक्वेंस मेरे पास कैसी हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबव तो होना ही है, एंड बाउंडेड बिलो भी है। और बाउंडेड अबव बाय व्हाट, बाउंडेड अबव बाय 1 एंड बाउंडेड बिलो बाय -1। अब देखो यहाँ पे आप और भी एलिमेंट्स लिख सकते हो, 2 3 4 से भी बाउंड करा सकते हो, है ना। यहाँ पे -2 -3 से भी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि -1 से ही क्यों कराए, तो वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके। देन देखो यहाँ पे मैंने bn एक सीक्वेंस ले ली, जिसको मैंने क्या लिख दिया, सपोज आई हैव रिटन हियर n, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दिस इज 1 2 3 4 5। तो आप देखो कि ये सीक्वेंस जो है ये ऐसा कुछ है, 1 से तो हर एक एलिमेंट बड़ा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है आपको। कोई ऐसा, आप किसी, कोई है ऐसा यहाँ पे जो इस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से बाउंड कर दे, कोई ऐसा फाइनाइट रियल नंबर आपको मिल रहा है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तो नहीं हुई, है ना। बाउंडेड अबव हुई क्या, क्या हर एक एलिमेंट किसी नंबर से छोटा या उसके बराबर है, नहीं हुई। और बाउंडेड बिलो हो गई, तो क्योंकि बाउंडेड होने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है ना। In a similar way, let's take Cn as a sequence which is -n, तो वो क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आप देखो हर एक एलिमेंट जो है वो कैसा है, -1 से छोटा है, राइट। जो an है वो लेस देन और इक्वल्स टू -1 है। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तो नहीं हुई, बाउंडेड बिलो हो गई क्या, बाउंडेड बिलो भी नहीं हुई, क्योंकि हमको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे हर एक एलिमेंट बड़ा हो। बट हाँ ये बाउंडेड अबव हो गई, एंड बाउंडेड अबव बाय व्हाट, बाउंडेड अबव बाय दिस -1, है ना। आप 0 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, विल सी अबाउट इट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड नाउ लेट्स सी वन मोर सीक्वेंस। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया -1 की पावर n इंटू एन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो अगर हम n को 1 देंगे तो -1, n को 2 दिया तो दिस इज 2, n को 3 दिया -3, देन 4 हो, है ना। फिर हमने 5 दिया, फिर इन अ सिमिलर वे यू आर गोइंग टू सी कि जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों डायरेक्शंस में बढ़ रहे हैं, है ना।
मतलब अगर ये हमारी रियल लाइन है तो पहले हमको 2 मिला, फिर 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना, 8 मिल रहा है, फिर आप यही देखोगे -1 भी मिल रहा है, -3 भी, -5 भी, -7 भी। तो हम इधर भी प्रोसीड करते जा रहे हैं और हम इधर भी प्रोसीड करते जा रहे हैं। मतलब कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे जिससे हम हर एक एलिमेंट को क्या कर दे, बाउंडेड अबव दिखा दे, यानी हर एक एलिमेंट उससे, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हर एक एलिमेंट को हम बड़ा दिखा दिया, छोटा। तो मतलब ये सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, ये ना तो बाउंडेड अबव है और ना ही ये बाउंडेड बिलो है। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया है कि एक बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है और एक अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, इफ इट इज क्लियर देन आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे एक थ्योरम से। थ्योरम के बाद मैं आपको कुछ लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस के बारे में बताऊंगी, जहां पे आपका ये डाउट क्लियर होगा कि क्यों मैं -1 से यहाँ पे बाउंड कर रही थी और 1 से कर रही थी, किसी और नंबर से क्यों नहीं किया, है ना। ये सब कुछ हम देखेंगे इजीली। ठीक है, तो व्हाट वाज द समरी फॉर टुडेज क्लास? समरी वाज दिस कि वी हैव लर्नड कि व्हाट इज अ सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस क्या होती है ऑफ रियल नंबर्स। एंड देन हमने नेक्स्ट क्या सीखा? नेक्स्ट हमने सीखा कि हमारे पास रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस कवर करने के बाद हमने बाउंडेड अबव सीक्वेंस सीखी। ठीक है, देन वी लर्नड अबाउट बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। Bounded below sequence के बाद we have gone through bounded sequence, and finally we also understood what is a unbounded above sequence and what is a unbounded below sequence। और इनमें से कोई भी एक केस हो गया अगर सीक्वेंस के साथ, यानी या तो वो अनबाउंडेड अबव हो गई या तो वो अनबाउंडेड बिलो हो गई या दोनों ही हो गई, सो देन दैट सीक्वेंस वुड बी कंसिडर्ड एज अनबाउंडेड सीक्वेंस। दिस वॉज द समरी फॉर टूडेज क्लास, वट एवर वी हैव लर्न। इस क्लास में जो कुछ भी हमने सीखा है, if you have any doubt please feel free to ask your questions either in comment section or on telegram. Okay, we are available to answer all your questions. Okay, so please watch this video carefully because this covers the foundation of your sequence and series course, and if you have any doubt just let us know. All right, so thank you so much, and please share this with all the students who really need to cover IIT JAM 2025 syllabus. Okay, so that's it. Thank you so much.